जेनेटिक कोड टू बिल्डिंग इंटेलिजेंट मशीन्स, हम असल में ह्यूमैनिटी के नेक्स्ट चैप्टर को राइट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इससे पहले कि हम इस फैसिनेटिंग जर्नी को शुरू करें, एक छोटा सा काम। हाँ, जरूर। अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को लेकर हमारी तरह ही एक्साइटेड हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को हिट करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और नीचे कमेंट में हमें बताएं विच ऑफ टुडेज टॉपिक्स आर यू मोस्ट एक्साइटेड अबाउट। जीन एडिटिंग, एआई, हाइपरसोनिक वेपन्स, आपका एंगेजमेंट ही इस कॉन्वर्सेशन को फ्यूल करता है। एंड वी हैव अ पैक्ड मैप फॉर टुडेज डिस्कशन। यस, हम 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू साइंस एंड टेक के कटिंग एज को एक्सप्लोर करेंगे। We'll begin by decoding the building blocks of life. Right. GM crops, the revolutionary CRISPR technology, the mysterious jumping genes, and the cancer-fighting CAR-T therapy. इसके बाद we'll shift our focus to India's own ambitious scientific initiatives, जैसे कि Phenom India Biobank और National Biofoundry Network. फिर we'll enter the world of physics and defense, exploring nuclear energy, 3D or 4D printing, और the incredible speed of hypersonic weapons. And finally, we'll wrap up with the technology that's on everyone's mind. Artificial intelligence. So this is more than just a quiz. बिल्कुल. It's a deep exploration of the concepts shaping our tomorrow. Let's begin. Okay, let's start with the very foundation of modern biology. हमारा पहला segment है biotechnology and how we are learning to rewrite the code of life itself. Right. The first question tackles a topic that's always in the news. Yes, let's look at it. Question 1. In India, which body plays the primary regulatory role for GM crops? Okay, the broad micro theme is GM crop regulation. The options are A. National Biodiversity Authority, B. Genetic Engineering Appraisal Committee, C. Central Insecticides Board, D. Agricultural and Processed Food Products Export Authority or APIDA. GM crops, genetically modified crops. I think हम सब ने BT cotton या BT brinjal के बारे में सुना है. हाँ, जरूर सुना होगा. But before we get to the options, can you briefly set the context? What exactly is a GM crop and why is its regulation so important? Great starting point. सोचो एक normal cotton plant है जो bollworm नाम के insect के आगे vulnerable है. Right. Scientists क्या करते हैं? They take a gene from a bacterium, Bacillus thuringiensis या BT, जो एक natural toxin produce करता है, सिर्फ उस insect के लिए harmful. अच्छा. They insert this gene into the cotton's DNA. The result? एक नया variety of cotton, BT cotton, जो अपना खुद का pesticide बनाता है. That's a GM crop. Simple. और रेगुलेशन इसलिए इतना क्रूशल है बिकॉज वी आर ऑल्टरिंग अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फंडामेंटल नेचर. हमें इंश्योर करना है कि ये एनवायरनमेंट के लिए, दूसरे एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस के लिए सेफ है. इट्स अ क्लासिक केस ऑफ बैलेंसिंग इनोवेशन विद सेफ्टी. That makes sense. Innovation versus safety. Okay, with that context, let's analyze the options. Option A है National Biodiversity Authority. इसका काम क्या है? द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी या एनबीए ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर सेटअप हुई थी. इसका प्राइमरी मैंडेट है इंडिया की रिच बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, Okay. सस्टेनेबल यूज इंश्योर करना और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से होने वाले बेनिफिट्स की फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करना. मतलब ये एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी से डील करती है, नए जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स के क्रिएशन और रेगुलेशन से नहीं. तो ऑप्शन ए बाहर है. करेक्ट. Okay. So NBA is a protector of what exists, not a regulator of what's newly created. What about option C, the Central Insecticides Board? इसका नाम ही एक बहुत बड़ा क्लू है. हाँ. द सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड इंसेक्टिसाइड्स एक्ट ऑफ 1968 के अंडर है. इसका काम है इंसेक्टिसाइड्स का इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल और यूज रेगुलेट करना. तो एक जीएम क्रॉप जैसे बीटी कॉटन इंसेक्टिसाइड्स की जरूरत कम कर सकती है, लेकिन बोर्ड का काम केमिकल पेस्टिसाइड्स को रेगुलेट करना है, क्रॉप को नहीं. So C is also incorrect. यस. And option D, APIDA? एपीडा है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी. इसका गोल है इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट प्रमोट करना. अच्छा, export. हाँ, ये ट्रेड, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सपोर्ट और मार्केट एक्सेस से डील करती है. इसके पास जीएम क्रॉप को अप्रूव या रेगुलेट करने का साइंटिफिक मैंडेट या लीगल अथॉरिटी नहीं है. Got it. So D is also out of the picture. बिल्कुल. This leaves us with option B, Genetic Engineering Appraisal Committee, या GEAC. ये नाम से ही काफी स्पेसिफिक और करेक्ट लग रहा है. And it is. द GEAC ही इंडिया में इसके लिए अपेक्स बॉडी है और ये फंक्शन करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है. कोई भी प्रपोजल फॉर द कमर्शियल रिलीज ऑफ अ जीएम क्रॉप इनटू द एनवायरनमेंट, उसे GEAC से क्लियरेंस लेना ही पड़ता है. So it's the gatekeeper. इसमें कोई पेरिफेरल नॉलेज है जो यूजफुल हो सकती है. Absolutely. याद रखें कि GEAC का अप्रूवल फूड क्रॉप्स के लिए आखिरी फैसला नहीं होता. एक जीएम फूड क्रॉप के लिए GEAC के अप्रूवल के बाद भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI का अप्रूवल जरूरी है. ओ, एक और लेयर है. हाँ, ऑल्सो एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स का भी काफी बड़ा रोल होता है कि वो जीएम क्रॉप कल्टीवेशन अलाउ करेंगे या नहीं. Right. So how do we remember this easily? द मेमोरी हैक इज सिंपल. कीवर्ड्स देखो.
क्वेश्चन जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में है। Okay, The only option with genetic engineering in its name is the Genetic Engineering Appraisal Committee. नाम ही उसका फंक्शन बता रहा है, GEAC for Genetic Engineering. perfect. So the mini recap is, when it comes to GM crops in India, the main regulatory boss is GEAC under the Environment Ministry. Exactly. Let's move to a technology that takes this a step further. Yes, from modifying plants to potentially editing any DNA, including our own. Question 2. Gene editing using CRISPR-Cas9 primarily enables which of the following interventions? Micro theme है gene editing technology. Okay, the options are A. Altering specific DNA sequences at targeted locations within the genome. B. Measuring complete genome sequences without changing genetic material. C. Producing synthetic chromosomes independent of existing cellular DNA. D. Transferring entire genomes between unrelated species in one step. CRISPR-Cas9 इस टेक्नोलॉजी को नोबेल प्राइज मिला है एंड फॉर अ गुड रीजन। इसने बायोलॉजी को सच में रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। जरूर। इमेजिन करो कि आपका डीएनए एक बहुत बड़ी एनसाइक्लोपीडिया है जिसमें सिर्फ 4 लेटर्स हैं, A, T, C एंड G। ठीक है। अब इमेजिन करो कि पेज 5000 पर एक वर्ड में एक सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक है जिसके कारण एक बीमारी हो रही है। ओके। क्रिस्पर से पहले उस एक गलती को ढूंढना और ठीक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। And CRISPR changed that. प्रिसाइसली। CRISPR-Cas9 एक बायोलॉजिकल फाइंड एंड रिप्लेस टूल जैसा है। इसके 2 पार्ट्स हैं। CRISPR पार्ट एक गाइड आरएनए जैसा है जिसे आप प्रोग्राम कर सकते हो टू फाइंड द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ओके, वो स्पेसिफिक मिसस्पेल्ड वर्ड। हाँ, और Cas9 पार्ट एक एंजाइम है जिसे मॉलिक्यूलर सिजर्स भी कहते हैं जो डीएनए को उस एग्जैक्ट स्पॉट पर काट देता है। वाओ। जब डीएनए कट जाता है तो सेल का नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म शुरू हो जाता है और हम उससे गाइड कर सकते हैं टू रिप्लेस द रॉन्ग सीक्वेंस विद द करेक्ट वन। Wow, so it's about precision targeting. With that understanding, let's look at the options. Option B बात कर रहा है measuring genome sequences की। ये इनकरेक्ट है। डीएनए सीक्वेंस को मेजर या रीड करना जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाता है। क्रिस्पर एडिटिंग या राइटिंग के बारे में है, सिर्फ रीडिंग नहीं। सो बी इज आउट। Option C और D काफी एक्सट्रीम लग रहे हैं, producing synthetic chromosomes और transferring entire genomes। एग्जैक्टली ये सब सिंथेटिक बायोलॉजी के बहुत ही कॉम्प्लेक्स फीड्स हैं और CRISPR-Cas9 का प्राइमरी फंक्शन नहीं है। क्रिस्पर एक बहुत ही प्रिसाइज माइक्रो लेवल पे काम करता है, स्पेसिफिक जीन्स को टारगेट करता है। Right. वो पूरे जीनोम्स ट्रांसफर नहीं करता। सो C एंड D आर ऑल्सो इनकरेक्ट। Which leaves us with option A, altering specific DNA sequences at targeted locations within the genome। ये आपके find and replace analogy से perfectly match करता है। It's the bullseye. That is precisely what CRISPR-Cas9 was designed to do. इसमें कोई critical peripheral knowledge? बहुत क्रिटिकल है। There are 2 types of gene editing, somatic and germline. सोमैटिक एडिटिंग बॉडी सेल्स को टारगेट करती है जैसे ब्लड सेल्स या लंग सेल्स। ये चेंजेस हेरिटेबल नहीं होते हैं, अच्छा। मतलब अगली जनरेशन में पास नहीं होते हैं। ज्यादातर करंट रिसर्च जैसे सिकल सेल एनीमिया के लिए इसी पर फोकस्ड है। एंड germline editing? जर्मलाइन एडिटिंग रिप्रोडक्टिव सेल्स को टारगेट करती है, स्पर्म, एग्स या एम्ब्रियोज। यहाँ किए गए चेंजेस आने वाली सारी जनरेशंस में पास ऑन हो जाते हैं। ओह, वाओ। इसी वजह से ये एथिकली बहुत एक्सप्लोसिव है। इससे डिजाइनर बेबीज की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। That's why it's banned in most countries. ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। इस कॉन्सेप्ट को लॉक इन कैसे करें? For a memory hack, think of CRISPR as a GPS-guided scissor. GPS यानी गाइड आरएनए आपको एग्जैक्ट लोकेशन पर ले जाता है और scissor यानी Cas9 एंजाइम कट लगा देता है। It's all about precision. Great analogy. Mini recap. CRISPR-Cas9 is a precision tool for editing DNA, not reading it or making large-scale changes. Now, from engineered genes, let's talk about genes that engineer themselves. An excellent transition. Let's look at question 3. What is a key characteristic of jumping genes, also called transposable elements? Micro theme है transposable elements. And the options are A. They permanently silence all neighboring genes after insertion. B. They move to new genomic locations, sometimes altering gene expression. C. They occur only in bacterioplasmids, not in eukaryotic genomes. D. They always reduce total DNA content by excising large segments. Jumping genes, नाम ही कितना evocative है ना? हाँ। एक टाइम था जब साइंटिस्ट सोचते थे कि जीनोम एक स्टैटिक स्टेबल इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, लेकिन इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी जिसके लिए बारबरा मक्लिंटॉक को नोबेल प्राइज मिला, उसने दिखाया कि जीनोम एक्चुअली एक डायनामिक एक्टिव प्लेस है। तो इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? द कोर कॉन्सेप्ट इज कि ये डीएनए के ऐसे सेगमेंट्स हैं जो जीनोम में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव कर सकते हैं। So they're like nomads inside our own DNA? परफेक्ट एनालॉजी। दे आर द नोमैड्स ऑफ द जीनोम। 2 तरीके से मूव करते हैं, कट एंड पेस्ट जहां जीन खुद को एक जगह से काट कर दूसरी जगह पेस्ट करता है, Okay. और कॉपी एंड पेस्ट जहां वो अपनी एक कॉपी बनाता है और वो कॉपी कहीं और इंसर्ट हो जाती है। Okay. Let's analyze the options based on this nomadic behavior. Option A कहता है कि वो permanently silence all neighboring genes. All word थोड़ा अजीब लग रहा है। It's too absolute and therefore incorrect. जब एक जंपिंग जीन नई जगह पर लैंड करता है तो उसके अलग-अलग इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे?
हो सकता है वो किसी जीन के बीच में लैंड करे और उसे डिसरप्ट कर दे, पर यह भी हो सकता है कि वो किसी जीन के पास लैंड करे और उसे एक्सीडेंटली टर्न ऑन कर दे। तो ये गलत है। व्हाट अबाउट ऑप्शन सी कि ये सिर्फ बैक्टीरिया में होते हैं? ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स वर्चुअली सभी ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया से लेकर प्लांट्स और ह्यूमंस तक। रियली? इनफैक्ट ह्यूमन जीनोम का एक बहुत बड़ा हिस्सा, कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं ऑलमोस्ट 50%, इन्हीं जंपिंग जीन से बना है। That's a staggering number. Okay, so C is definitely out. Now for option D, they always reduce total DNA. ये भी गलत है। उस कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म के बारे में सोचो जो मैंने बताया। Right. उस केस में ओरिजिनल जीन वहीं रहता है और एक नई कॉपी ऐड हो जाती है। इससे तो एक्चुअली डीएनए का टोटल अमाउंट बढ़ जाता है। सो डी इज इनकरेक्ट। So by elimination, we get to option B. They move to new genomic locations, sometimes altering gene expression. ये तो इनकी डेफिनेशन ही लग रही है। Exactly. इनकी defining characteristic ही इनकी mobility है और उस movement के potential consequences. इसमें कोई पेरिफेरल नॉलेज? हाँ, कुछ ह्यूमन डिजीजेस जैसे सर्टेन टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इसलिए होती हैं क्योंकि जंपिंग जीन्स क्रिटिकल जीन्स में इंसर्ट हो जाते हैं और उन्हें डिसरप्ट कर देते हैं। so they can be both a creative force for evolution and a cause for disease. And the memory hack. The one you came up with is perfect. Think of them as the nomads of the genome. हमेशा चलते रहते हैं और उनके आने से पड़ोस बदल जाता है। Got it. Mini recap. Jumping genes are mobile DNA elements whose key feature is their ability to move within the genome, which can alter how other genes work. बिल्कुल। Now from a fundamental concept to a life-saving application. Right. Let's discuss a therapy that is a true game changer in cancer treatment. Question 4. Chimeric antigen receptor T-cell therapy is best described as. The microtheme is immunotherapy. The options are A. Injection of monoclonal antibodies targeting tumor surface receptors. B. Transplantation of donor bone marrow stem cells into patients. C. Use of patient T cells genetically engineered to attack cancer cells. D. Administration of oncolytic viruses that selectively lyse malignant cells. इसका कॉन्टेक्स्ट इंडिया के लिए बहुत एक्साइटिंग है। हमने हाल ही में अपनी पहली इंडिजिनस और काफी अफोर्डेबल कार-टी थेरेपी लॉन्च होते देखी है, जिसका नाम है नेक्सकार 19। That's a huge leap. इट इज। अब कॉन्सेप्ट कार-टी इम्यूनोथेरेपी का एक फॉर्म है, जिसका मतलब है कि हम पेशेंट के अपने इम्यून सिस्टम को कैंसर से लड़ने के लिए यूज कर रहे हैं। पर ये बहुत एडवांस्ड फॉर्म है। इसे अक्सर लिविंग ड्रग कहते हैं। A living drug. That's a powerful term. What does it mean? इसका मतलब है कि ट्रीटमेंट पेशेंट के अपने जिंदा सेल से बनता है। Okay. कैसे? ऐसे, पहला, डॉक्टर्स पेशेंट का ब्लड निकालते हैं और उसमें से टी सेल्स अलग करते हैं। टी सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम के सोल्जर्स हैं। Right. दूसरा, लैब में वो एक डिसेबल्ड वायरस यूज करके इन टी सेल्स में एक नया जीन डिलीवर करते हैं। ये जीन टी सेल्स को उनकी सरफेस पर एक स्पेशल रिसेप्टर, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर यानी कार बनाने का इंस्ट्रक्शन देता है। Okay. एक special sensor. एग्जैक्टली। 3. ये कार टी सेल्स इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो पेशेंट के कैंसर सेल्स की सरफेस पर एक स्पेसिफिक प्रोटीन को पहचान कर उससे बाइंड कर ले। ठीक है. 4. इन नए इंजीनियर्ड सुपर सोल्जर टी सेल्स को लैब में मिलियंस में मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर पेशेंट में वापस इन्फ्यूज कर दिया जाता है। And then? 5. अब ये कार टी सेल्स बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, कैंसर सेल्स को ढूंढते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। That is an incredible fusion of immunotherapy and genetic engineering. तो चलो ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. ये एक अलग चीज है ना? करेक्ट। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लैब मेड प्रोटीन्स हैं जो एंटीबॉडीज की तरह काम करते हैं। वो लिविंग सेल्स नहीं है, सो ए इज नॉट कार टी। ऑप्शन बी इज अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट. ये भी एक अलग प्रोसीजर है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में पेशेंट का पूरा इम्यून सिस्टम रिप्लेस किया जाता है, यूजुअली एक डोनर से। कार-टी पेशेंट के एग्जिस्टिंग इम्यून सेल्स को मॉडिफाई करता है। सो बी इज इनकरेक्ट। एंड ऑप्शन डी oncolytic viruses. ये एक और एक्साइटिंग एरिया ऑफ रिसर्च है जहां वायरसेस को कैंसर सेल्स को किल करने के लिए इंजीनियर किया जाता है। बट अगेन, ये टी सेल्स यूज नहीं करता, सो डी इज ऑल्सो आउट। This brings us to option C. Use of patient T cells genetically engineered to attack cancer cells. ये तो प्रोसेस का परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन है. एब्सोल्युटली, दैट इज द करेक्ट आंसर। पेरिफेरल नॉलेज यहाँ क्या है? इम्पॉर्टेंट टू नो कि कार-टी थेरेपी अभी ब्लड कैंसर्स जैसे लुकीमिया और लिम्फोमा के अगेंस्ट सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। ऑल्सो इसका एक बहुत सीरियस साइड इफेक्ट हो सकता है जिसे साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम या CRS कहते हैं, जिसमें इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है। Right. Great power comes with great risk. What's a good memory hack for CAR-T? Think of the car in CAR-T like a high-tech car that you fitted onto your T-cell soldiers. Okay. इस कार में एक स्पेशल GPS है जो सिर्फ एक एड्रेस, कैंसर सेल्स को ढूंढने के लिए प्रोग्राम्ड है। That's a very clear image. Mini recap. CAR-T therapy weaponizes a patient's own immune cells by genetically engineering them to recognize and kill cancer. A true living drug.
And that concludes our first segment on rewriting the code of life. An incredible journey from plants to patients. Now let's zoom out a bit and see how India is building the infrastructure to support this kind of advanced research. Our next segment is on India's scientific initiatives. Right. First up, a project about data on a massive scale. Precisely. Question 5. With reference to the Phenome India National Biobank, consider the following statements. 1. The National Biobank is hosted at CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology. 2. The Phenome India project focuses exclusively on collecting pathogen samples. 3. It aims to support early diagnosis and targeted therapies for complex diseases. The micro theme is biomedical research infrastructure. So a biobank, ये blood bank जैसा ही है पर research के लिए. हाँ, मतलब उससे स्टार्ट कर सकते हैं, पर ये उससे बहुत ज्यादा है. Okay. अब बायोबैंक एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड रिपोजिटरी है ह्यूमन बायोलॉजिकल सैंपल्स का, जैसे ब्लड, यूरिन, डीएनए, जो डिटेल्ड हेल्थ, लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंटल डेटा से लिंक्ड है. Wow. गोल है एक मैसिव डेटा सेट बनाना जिससे रिसर्चर्स हमारे जीन्स, लाइफस्टाइल और बीमारियों के रिस्क के बीच लिंक्स ढूंढ सकें. Okay, so it's a data gold mine for medical research. Let's analyze the statements. Statement 1 कहता है कि ये CSIR IGIB में hosted है. Is this correct? Yes, that is factually correct. The main coordinating center is the CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology in Delhi. So statement 1 is true. Statement 2 कहता है कि ये exclusively pathogen samples पर focus करता है. ये exclusively word हमेशा एक red flag होता है. A very sharp observation, and you're right to be suspicious. Statement 2 is incorrect. क्यों? क्योंकि इसका scope सिर्फ pathogen से बहुत ज़्यादा broad है. It's about collecting comprehensive data on the participants themselves, उनके genomics, protein levels, metabolic data, along with their clinical records and lifestyle information. Got it. And statement 3 says, the aim is to support early diagnosis and targeted therapies. This sounds like the ultimate goal of such a project. It is the core purpose. इस डेटा को एनालाइज करके हम ऐसे बायोमार्कर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो सिम्टम्स आने से सालों पहले बीमारी प्रिडिक्ट कर सकें. Or targeted therapies? और ये समझकर कि कुछ लोग एक ड्रग पर रिस्पॉन्ड क्यों करते हैं और दूसरे नहीं, हम टारगेटेड पर्सनलाइज्ड थेरेपीज डेवलप कर सकते हैं. So statement 3 is absolutely correct. So statements 1 and 3 are correct. That makes option D the right answer. How can we remember the term phenome? A good memory hack is to break it down. Phenome is a combination of phenotype and genome. Okay. Phenotype मतलब observable traits जैसे height, weight, और genome मतलब genetic material. ये project इन दोनों को connect करता है. Phenome equals phenotype plus genome. That's very helpful. Many recap, the Phenome India Biobank is a massive, multi-data type library connecting our genes and lifestyle to health, aimed at enabling precision medicine. Now from collecting data to building with biology, let's look at question 6. Right. With reference to the National Biofoundry Network and Bio-E3 policy, consider the following statements. 1. A biofoundry automates the design and optimization of engineered organisms. 2. The National Biofoundry Network supports scaling proof-of-concept biotechnologies. 3. The Bio-E3 policy focuses solely on agricultural biotechnology applications. The theme here is biotechnology policy. अच्छा, biofoundry. ये iron foundry जैसा sound करता है, but for biology. That's exactly the right way to think about it. एक ट्रेडिशनल फाउंड्री रॉ मेटल लेती है और उससे यूजफुल पार्ट्स में फॉर्ज करती है. हाँ. अब बायोफाउंड्री जेनेटिक कोड लेती है और उसे यूजफुल बायोलॉजिकल सिस्टम्स में फॉर्ज करती है, जैसे इंजीनियर्ड माइक्रोब्स जो बायोफ्यूल्स या मेडिसिन्स बना सकते हैं. Wow. द कीवर्ड इज ऑटोमेशन. ये रोबोटिक्स और सॉफ्टवेयर यूज करके हजारों जेनेटिक डिजाइन्स को रैपिडली डिजाइन, बिल्ड और टेस्ट करती है. इट्स लाइक अ फैक्ट्री फॉर इंजीनियरिंग लाइफ. A factory for biology. Wow. And the Bio-E3 policy? Bio-E3 इसके पीछे का स्ट्रेटेजिक विजन है. ये एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है जिसका एम है बायोटेक्नोलॉजी को 3 की एरियाज के लिए लेवरेज करना. E3 इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. Okay. With these concepts clear, let's tackle the statements. Statement 1. A biofoundry automates design and optimization of engineered organisms. ये आपकी फैक्ट्री एनालॉजी से फिट बैठता है. करेक्ट. ऑटोमेशन और स्पीड ही एक बायोफाउंड्री की कोर वैल्यू है. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. Statement 2. The National Biofoundry Network supports scaling proof of concept biotechnologies. ये भी एक लॉजिकल लगता है, लैब के आइडिया से मार्केट के प्रोडक्ट तक. करेक्ट. अगेन ये नेटवर्क उसी वैली ऑफ डेथ को ब्रिज करने के लिए डिजाइन किया गया है जहां प्रॉमिसिंग लैब रिसर्च फेल हो जाती है. स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. Now, Statement 3. The Bio-E3 policy focuses solely on agricultural biotechnology applications. फिर से solely word. एंड अगेन इट्स द रीजन द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. द Bio-E3 पॉलिसी बहुत ब्रॉड है. इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं बल्कि मेडिकल बायोटेक, इंडस्ट्रियल बायोटेक, एनवायरमेंटल बायोटेक सब कुछ आता है. So, statements 1 and 2 are correct, making option A the right answer.
BioE3 के लिए कोई आसान मेमोरी हैक है? The hack is in the name itself. BioE3 is simply E multiplied by 3. What are the 3 E's? Economy, environment, and employment. बिल्कुल. Simple and effective. Mini recap. Biofoundries are automated factories for biology to increase speed, and the BioE3 policy is India's broad strategy to use that capability for economic, environmental, and employment goals. Exactly. And now let's shift gears from the microscopic world of biology to the subatomic world of physics. Right, from biotech to big physics. This next segment is on physics and defense tech. And we start with the very core of an atom. Yes. Question 7. With reference to nuclear fission, fusion, and related reactors, consider the following statements. 1. Nuclear fusion of deuterium and tritium generally releases more energy per kilogram than fission. 2. Fast breeder reactors primarily aim to consume plutonium without producing any additional fissile material. Nuclear energy, a topic of immense importance and often immense confusion. चलो पहले दो कोर कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करते हैं, फिजन एंड फ्यूजन. Okay. फिजन मतलब टू स्प्लिट. हम एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम 235 लेते हैं, उसे एक न्यूट्रॉन से हिट करते हैं, वो स्प्लिट हो जाता है जिससे ह्यूज एनर्जी रिलीज होती है. और एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है. करेक्ट. यही करंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होता है. Okay, fission is equals to splitting. So fusion must be the opposite. प्रिसाइजली. फ्यूजन मतलब टू जॉइन. हम दो बहुत हल्के न्यूक्लियाई जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ड्यूटेरियम और ट्रिटियम लेते हैं और उन्हें इमेंस हीट और प्रेशर में फ्यूज करते हैं टू फॉर्म अ लार्जर न्यूक्लियस. जैसे कि सन में होता है. हाँ, इस प्रोसेस में फिजन से भी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है. So, statement 1 says, nuclear fusion releases more energy per kilogram than fission. आपके explanation के हिसाब से ये सही लग रहा है? इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. पर मास बेसिस पे फ्यूजन सिग्निफिकेंटली ज्यादा पावरफुल है. द चैलेंज ऑफ कोर्स इसकी अर्थ पर कंट्रोल्ड फ्यूजन के लिए स्टार लाइक कंडीशंस बनाना बहुत मुश्किल है. Okay, so statement 1 is true. Now for statement 2 about fast breeder reactors. It says they consume plutonium without producing more. Breeder नाम इसे contradict करता है. योर इंट्यूशन इज स्पॉट ऑन. नाम ही सब बता रहा है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है. क्यों? अ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर या FBR का प्राइमरी पर्पस ही है ब्रीड करना, मतलब जितना फिसल मटेरियल कंज्यूम करता है उससे ज्यादा बनाना. अच्छा. ये प्लूटोनियम 239 एज फ्यूल यूज करता है, लेकिन रिएक्टर कोर के चारों तरफ यूरेनियम 238 का एक ब्लैंकेट होता है. फिशन से निकले फास्ट न्यूट्रॉन्स U238 से कैप्चर होते हैं और उसे और प्लूटोनियम 239 में बदल देते हैं. So it's creating its own fuel as it operates? ये इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये क्रूशियल पेरिफेरल नॉलेज है. इंडिया के पास यूरेनियम कम है पर थोरियम बहुत है. इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम इसी थोरियम को यूज करने के लिए डिजाइंड है. Okay. FBRs स्टेज 2 में आते हैं. वो स्टेज 1 से बने प्लूटोनियम को यूज करके और प्लूटोनियम बनाएंगे और थोरियम को फिसल यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करेंगे. ये FBRs हमारी एनर्जी इंडिपेंडेंस की स्ट्रैटेजी में क्रिटिकल लिंक है. That's a fascinating long-term strategy. So only statement 1 is correct, making A the answer. The memory hack is in the names themselves. Exactly. Memory hack. Fission is splitting. Fusion is joining. And a breeder reactor breeds more fuel than it consumes. Very clear. Mini recap. Fusion is more energy dense than fission. And breeder reactors are designed to produce, not just consume, fissile fuel, which is key to India's nuclear strategy. Good. अब एक टेक्नोलॉजिकल डिजीज फाइटर जैसे CAR-T से एक पुरानी बीमारी के खिलाफ पब्लिक हेल्थ बैटल पर आते हैं. Yes. Question 8. With reference to tuberculosis and its types, consider the following statements. 1. Pulmonary tuberculosis affects the lungs and is spread through airborne droplets. 2. Extrapulmonary tuberculosis always spreads directly from person to person through coughing. The theme is infectious diseases. अब इन दो टाइप्स में क्या फर्क है? नाम में ही की है. पल्मोनरी मतलब लंग्स से रिलेटेड, तो पल्मोनरी TB लंग के अंदर का इन्फेक्शन है. एक्स्ट्रा पल्मोनरी का मतलब है आउटसाइड द लंग्स. Okay. ये तब होता है जब TB बैक्टीरिया लंग से ट्रैवल करके बॉडी के दूसरे पार्ट्स जैसे किडनीज, स्पाइन या ब्रेन को इन्फेक्ट करते हैं. So it's about the location of the infection. Okay, let's look at statement 1. Pulmonary tuberculosis affects the lungs and is spread through airborne droplets. ये तो क्लासिक तरीका है टीबी के फैलने का. एंड इट इज करेक्ट. जब एक पर्सन जिसे एक्टिव पल्मोनरी TB है वो कॉफ या स्नीज करता है तो वो हवा में टाइनी ड्रॉपलेट्स रिलीज करता है. दूसरे लोग जब ये इनहेल करते हैं तो वो इन्फेक्ट हो सकते हैं. Statement 1 is true. Now statement 2. Extrapulmonary tuberculosis always spreads directly from person to person through coughing. ये अनलाइकली लग रहा है अगर इन्फेक्शन लंग्स में नहीं है. Your logic is perfect. Statement 2 incorrect है. क्योंकि बैक्टीरिया लंग्स में नहीं है तो पर्सन उन्हें कॉफ करके बाहर नहीं निकाल सकता. Right. इसलिए एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB आमतौर पर नॉन कंटेजियस मानी जाती है. स्प्रेड पेशेंट के अंदर होता है, लंग्स से दूसरे ऑर्गन्स तक. So only statement 1 is correct, which means option A is the answer. The memory hack is built into the medical terms. करेक्ट.
Memory hack. Pulmonary is lungs and is contagious. Extrapulmonary is extra outside the lungs and is not contagious person to person. Simple. Mini recap. TB in the lungs is contagious through the air. TB in other body parts is not. Now let's jump back to future-forward technology. Let's talk about building things in a whole new way. Question 9. With reference to 3D and 4D printing technologies, consider the following statements. 4 statements है. Okay. Okay, 3D printing तो सुना है, it's additive manufacturing. Layer by layer object बनता है. But what is 4D printing? ये 4D dimension क्या है? The 4D dimension is time. एक 3D printed object static होता है. उसका shape fixed है. एक 4D printed object dynamic होता है. अच्छा. उसको स्पेशल स्मार्ट मटेरियल से प्रिंट किया जाता है जो टाइम के साथ अपना शेप बदल सकते हैं जब उन्हें कोई ट्रिगर मिले जैसे हीट, वाटर या लाइट. So 3D printing creates the object and 4D printing creates an object that can then transform itself. Fascinating. चलो statements देखते हैं. स्टेटमेंट 1 एंड 2 3D प्रिंटिंग के बारे में. हाँ. Rapid prototyping और on-demand manufacturing. ये तो उसके main selling points लगते हैं. एब्सोल्युटली. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. आप घंटों में प्रोटोटाइप हाथ में ले सकते हो, हफ्तों में नहीं. Right? स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है. हजारों स्पेयर पार्ट स्टोर करने की जगह अब सिर्फ डिजिटल फाइल रखो और जरूरत पड़ने पर प्रिंट कर लो. सो 1 एंड 2 आर ट्रू. Now, statement 3 defines 4D printing as objects that can change shape in response to stimuli. ये आपके explanation से एकदम मैच करता है. करेक्ट. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 4D प्रिंटिंग. सो स्टेटमेंट 3 इज आल्सो ट्रू. Okay, अब tricky वाला. Statement 4. 4D printing necessarily requires biological materials and cannot use synthetic polymers. क्यों? हाँ, कुछ रिसर्च बायोलॉजिकल मटेरियल्स जैसे हाइड्रोजेल्स यूज करती है, लेकिन एक बहुत बड़ा एरिया स्मार्ट सिंथेटिक पॉलीमर्स का है, जैसे शेप मेमोरी पॉलीमर्स. अच्छा. सो स्टेटमेंट 4 इज फॉल्स. 4D प्रिंटिंग मटेरियल एग्नोस्टिक है जब तक मटेरियल स्मार्ट हो. So statements 1, 2 and 3 are correct, making option D the answer. The memory hack seems straightforward here. It is memory hack. 4D is equal to 3D plus time. It's a 3D printed object with the dimension of time-based transformation added to it. Got it. Mini recap. 3D printing builds what you want. 4D printing builds something that can then become what you want it to be. अब smart objects से आते हैं incredibly fast speeds पर. The need for speed. Question 10 is on a cutting-edge defense technology. Hypersonic. Huh. With reference to scramjet engines and hypersonic weapons, consider the following statements. 1. A scramjet is an air-breathing engine using supersonic combustion of intake air. 2. Hypersonic weapons typically travel at speeds of at least Mach 5. 3. Hypersonic glide vehicles are powered throughout their flight by scramjet engines. Hypersonic word को थोड़ा break down करते हैं. Supersonic is faster than sound. What does hypersonic mean? Hypersonic generally refers to speeds of Mach 5 and above, यानी साउंड की स्पीड से 5 गुना. इन स्पीड्स पर फिजिक्स ऑफ फ्लाइट बदल जाती है. Okay. So, a scramjet is a special engine for hypersonic flight. Let's look at statement 1. A scramjet is an air-breathing engine using supersonic combustion of intake air. ये क्या है? ये स्क्रैमजेट के काम करने का कोर है और स्टेटमेंट करेक्ट है. एयर ब्रीदिंग मतलब ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है, रॉकेट की तरह अपना ऑक्सीडाइजर कैरी नहीं करता. ठीक है. नॉर्मल जेट इंजन में हवा को कंबशन से पहले स्लो डाउन किया जाता है. स्क्रैमजेट यानी सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट हवा पूरे इंजन से सुपरसोनिक स्पीड पर फ्लो करती है. Wow. सुपरसोनिक एयर फ्लो में फ्यूल जलाना एक तूफान में माचिस जलाने जैसा है, पर ये इंजन को हाइपरसोनिक वेलोसिटीज पर एफिशिएंटली ऑपरेट करने देता है. Okay, so statement 1 is true. Statement 2 defines hypersonic speed as at least Mach 5. यस, ये आपने अभी confirm किया. करेक्ट. Mach 5 is the standard threshold. So statement 2 is also true. राइट. Now, for the crucial distinction in statement 3. Hypersonic glide vehicles are powered throughout their flight by scramjet engines. Is this correct? ये बहुत कॉमन पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है और ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. अच्छा. हमें दो मेन टाइप्स ऑफ हाइपरसोनिक वेपन्स में डिफरेंशिएट करना होगा. टाइप 1 है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल HCM. ये एक बहुत फास्ट क्रूज मिसाइल जैसा है जो अपनी फ्लाइट के दौरान स्क्रैमजेट इंजन से पावर्ड होता है. Okay, and type 2? टाइप 2 है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV. ये अलग तरह से काम करता है. एक HGV को एक बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर माउंट किया जाता है. ठीक है. मिसाइल उसे बहुत ऊंचाई तक ले जाती है, उसे हाइपरसोनिक स्पीड देती है. फिर HGV डिटैच होता है और अपने टारगेट की तरफ अनपावर्ड ग्लाइड करता है. So it's more like a super fast maneuverable space plane for the final part. एग्जैक्टली. इट ग्लाइड्स टू इट्स टारगेट. इसलिए उन्हें डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है. So HGVs are not powered by scramjets during their glide phase. Statement 3 is false. So statements 1 and 2 are correct, making option A the answer. The memory hack is in the names. It is. Memory hack. Scramjet equals supersonic combustion and a glide vehicle glides after being launched by a rocket. Very clear. Mini recap. Hypersonic means Mach 5+, and there's a key difference between scramjet-powered cruise missiles and unpowered gliding vehicles.
Now for our last section, let's bring some of these concepts together. Yes, let's look at the applications. Question 11 circles back to gene editing. ठीक है. Consider the following applications of gene editing. 1. Treating sickle cell anemia by correcting disease-causing mutations in blood cells. 2. Developing drought-tolerant crops through targeted modification of plant genomes. The micro theme is gene editing applications. ये एक summary question जैसा लग रहा है. Precisely. It's about connecting the tool to the problem. Let's look at statement 1. Treating sickle cell anemia. ये एक genetic blood disorder है. हाँ, जो हीमोग्लोबिन जीन में एक सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक से होती है। ये क्रिस्पर के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है। कैसे? आइडिया है कि पेशेंट के ब्लड स्टेम सेल्स लो, क्रिस्पर से उस फॉल्टी लेटर को ठीक करो और करेक्टेड सेल्स को पेशेंट में वापस डाल दो। क्लिनिकल ट्रायल्स में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो स्टेटमेंट 1 इज अ करेक्ट एंड वेरी पावरफुल एप्लीकेशन। It's the find and replace tool we talked about, used to fix a real, devastating disease. Now for statement 2, developing drought-tolerant crops. ये जीन एडिटिंग का दूसरा बड़ा अरीना है, एग्रीकल्चर। क्लाइमेट चेंज से सूखा बढ़ रहा है, हाँ। कंट्रोल करते हैं। इससे ऐसी वैरायटीज बनाई जा सकती हैं जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार दें। So, statement 2 is also a correct application. So both statements are correct, making option C the answer. This really drives home the point. It does. The mini recap here is simple. Gene editing is no longer just a laboratory curiosity. It's a practical tool being used today to solve fundamental problems in both human health and global agriculture. And finally, our last question on the technology that is arguably having the biggest impact on our world right now. Indeed. Question 12. With reference to artificial intelligence and related national initiatives, consider the following statements. 1. Artificial narrow intelligence systems specialize in a single task domain. 2. Machine learning enables AI systems to improve performance using data-driven learning. 3. BharatGen aims to support applications across all 22 scheduled Indian languages. Artificial intelligence, a huge topic. इन टर्म्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं. जनरल AI और आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस या ANI में क्या फर्क है? It's a fundamental distinction. Artificial General Intelligence, AGI, sci-fi वाला AI है। इंसान जैसी कॉन्शियसनेस वाली मशीन। ऐसा अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है. जो आज हमारे पास है, फ्रॉम योर फोन्स वॉइस असिस्टेंट टू अ मेडिकल डायग्नोसिस टूल, वो है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, ANI। ओके. एक AI को एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन और ट्रेन किया जाता है। एक चेस्ट प्लेइंग AI किसी भी ग्रैंड मास्टर को हरा सकता है, पर आप उससे वेदर फोरकास्ट नहीं पूछ सकते। So statement 1, artificial narrow intelligence systems specialize in a single task domain is correct by definition. Yes, that is true. Narrow का मतलब ही यही है। Okay, now what is machine learning, ML, in relation to AI? मशीन लर्निंग AI का एक सबसेट है। ये एक टेक्निक है जो सिस्टम को एक्सपीरियंस से सीखने और इम्प्रूव करने देती है, बिना एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड हुए। Example. आप रूल्स नहीं लिखते, आप सिस्टम को बहुत सारा डेटा देते हो और वो पैटर्न्स खुद सीख जाता है। जैसे आप एक ML मॉडल को लाखों बिल्ली की तस्वीरें दिखाते हो और वो उन्हें पहचानना सीख जाता है। So statement 2, machine learning enables AI systems to improve performance using data-driven learning is also correct. It's the learning part of AI. करेक्ट अगेन। डेटा ही मशीन लर्निंग का फ्यूल है। सो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। And finally, statement 3, about a specific Indian initiative. BharatGen aims to support applications across all 22 scheduled Indian languages. दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव। क्यों? दुनिया के ज्यादातर पावरफुल AI मॉडल्स इंग्लिश डेटा पे ट्रेंड है। वो इंडिया की लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं समझते। Right. भारत जेन इंडिया AI मिशन का हिस्सा है, जिसका मकसद है अपने फाउंडेशनल AI मॉडल्स बनाना जो इंडियन डेटा पे ट्रेन हो और इंडिया के सभी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में एप्लीकेशन सपोर्ट कर सकें। So all three statements are correct, making option C the right answer. The memory hack seems quite direct here. It is. Memory hack. Narrow AI equals one trick pony. Machine learning equals learns from data. BharatGen equals AI for India. Perfect. Mini recap. The AI of today is narrow. It learns from data through ML, and India is building its own foundational models to ensure linguistic inclusivity. And that brings us to the end of our 12 questions, a real tour de force of modern science. Wow, what an incredible discussion. हमने एक सिंगल GM क्रॉप के रेगुलेशन से शुरू किया, फिर हमने लाइफ के कोड में डाइव किया, क्रिस्पर और CAR-T जैसी टेक्नोलॉजीज को देखा। हमने देखा कि इंडिया फिनोम, बायोबैंक और बायोफाउंड्री नेटवर्क के साथ फ्यूचर का ब्लूप्रिंट कैसे बना रहा है। वी एक्सप्लोर्ड द इमेंस पावर लॉक्ड इन द एटम और हाइपरसोनिक फ्लाइट की फिजिक्स, और आखिर में उस इंटेलिजेंस पर बात की जो शायद एक दिन इन सब कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने में हमारी मदद करेगी, AI. हाँ, It's a powerful toolkit we are building, but perhaps the most important takeaway किसी एक टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है. It's about their convergence. कन्वर्जेंस मतलब इन सब चीजों का एक साथ आना. हमने उन्हें अलग-अलग बॉक्सेस में डिस्कस किया है, पर फ्यूचर बॉक्सेस में नहीं है.
असली रेवोल्यूशन इन फील्ड्स के इंटरसेक्शन पर हो रहा है। कोई एग्जांपल दे सकते हैं? सोचो, एक एआई जिसके बारे में हमने अभी बात की, फिनोमिनला बायोबैंक के मैसिव डेटा सेट्स को एनालाइज कर सकता है। ओके। वो एक बीमारी के लिए एक नया जेनेटिक मार्कर आइडेंटिफाई कर सकता है जो हमने कभी नहीं ढूंढा होता। फिर एक बायोफाउंड्री यूज करके हम उस जीन को टारगेट करने के लिए एक नई क्रिस्पर बेस्ड थेरेपी तेजी से प्रोटोटाइप कर सकते हैं। वाओ। और उस थेरेपी का डिलीवरी मैकेनिज्म एक स्मार्ट 4D प्रिंटेड हाइड्रोजेल हो सकता है जो ड्रग तभी रिलीज करे जब वो बॉडी में स्पेसिफिक बायोलॉजिकल क्यूज डिटेक्ट करे। इट्स एआई प्लस बिग डेटा प्लस सिंथेटिक बायोलॉजी प्लस एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सब एक साथ। दैट्स माइंड ब्लोइंग। ये तो हमारी सारी बातों को एक सीमलेस प्रोसेस में जोड़ देता है। एग्जैक्टली और यही सबसे आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उठाता है हम सबके सोचने के लिए। क्या? जब ये पावरफुल टूल्स कन्वर्ज हो रहे हैं और भी पावरफुल बन रहे हैं तो हमें लाइफ, इंटेलिजेंस और मैटर को शेप करने की अनोखी क्षमता मिल रही है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या हम ये कर सकते हैं, बल्कि ये है कि क्या हमें ये करना चाहिए। वो कौन से एथिकल फ्रेमवर्क्स, ग्लोबल एग्रीमेंट्स और सोसाइटल कॉन्वर्सेशंस हैं जिनकी हमें अभी ज़रूरत है टू इंश्योर कि ये इनक्रेडिबल फ्यूचर जो हम बना रहे हैं वो सेफ, इक्विटेबल और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए फायदेमंद हो। A powerful and necessary question to end on. It's not just about the science, it's about the wisdom to use it well. सोचने के लिए काफी कुछ है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। Until next time, keep learning and stay curious. दोस्तों, सोचो, अगर हम यूनिवर्स की ही आवाज सुन पाते तो साउंड जैसा हम जानते हैं वैसा नहीं, बल्कि स्पेस और टाइम की चादर में जो रिपल्स उठती हैं उन्हें। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 100 साल पहले इसके बारे में सोचा था और आज हम उन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। कूल है ना? ये तो बस शुरुआत है। आज हम एक मैराथन सेशन करने वाले हैं कुछ ऐसे ही माइंड ब्लोइंग साइंस एंड टेक कॉन्सेप्ट्स का डिटेल्ड एनालिसिस जो प्रीलिम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो अगर तैयार हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को स्मैश करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो और कमेंट करके बताओ कि यू आर रेडी। बिल्कुल, अपनी कॉफी तैयार रखो क्योंकि ये सेशन लंबा और बहुत रिवॉर्डिंग होने वाला है। आज हम प्रीलिम्स अभ्यास 2025 के साइंस एंड टेक क्वेश्चंस को पूरी तरह से डीकोड करेंगे, एक एक करके। आज का हमारा लर्निंग मैप ये रहा। हम ग्रेविटेशनल वेव्स और लाइगो नेटवर्क से शुरू करेंगे, फिर नासा इसरो के निसार मिशन पर जाएंगे, उसके बाद ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस, क्या हम सच में दिमाग से मशीन्स कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आएगा इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे आकाशतीर और प्रोजेक्ट कुशा, स्पेस हैजर्ड्स जैसे सोलर फ्लेयर्स और केस्लर सिंड्रोम, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स के बीच का क्लासिक डिफरेंस भी समझेंगे। फिर आगे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, नेविक का असली ऑर्बिट क्या है, इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का खतरा, जंपिंग जीन्स, स्टेम सेल्स, डिजिटल ट्विन जैसी मॉडर्न टेक और आखिर में इंडिया के लेटेस्ट स्पेस मिशंस जैसे गगनयान और चंद्रयान 3 को कवर करेंगे। मिशन सिंपल है, इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एकदम मक्खन जैसा क्लियर करना। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 13 से। मैं इसे पढ़ता हूं। With reference to gravitational waves and their detection, consider the following statements. 1. Gravitational waves are ripples in space-time predicted by general relativity. 2. They travel at the speed of light and permeate the universe. 3. LIGO, Virgo, and CAGRA form an international network of gravitational wave observatories. 4. Gravitational waves can never be generated by merging black holes or neutron stars. How many of the statements given above are correct? A1, B3, C2, या D, all 4. Broad micro theme, gravitational waves and detection technology. बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आखिर ये ग्रेविटेशनल वेव्स हैं क्या? सोचो, स्पेस टाइम एक बहुत बड़ा स्ट्रेची ट्रैम्पोलिन है। अब अगर उसके बीच में एक भारी बोलिंग बॉल रख दो तो एक डिप बनेगा, है ना? वो ग्रेविटी है। अब सोचो, 2 बोलिंग बॉल्स जैसे कि 2 ब्लैक होल्स एक दूसरे के आसपास तेजी से घूम रहे हैं, तो वो उस ट्रैम्पोलिन शीट पर वेव्स बनाएंगे। वही वेव्स हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। ये स्पेस टाइम में डिस्टर्बेंसेस हैं जो यूनिवर्स के सबसे वायलेंट प्रोसेसेस से पैदा होती हैं। यूपीएससी के लिए इसके की एस्पेक्ट्स हैं। ये क्या हैं, इन्हें क्या बनाता है, कितनी तेजी से ट्रैवल करती हैं और हम इन्हें डिटेक्ट कैसे करते हैं। अच्छा, इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल। सोचो, आपने एक शांत झील में पत्थर फेंका, आपको रिपल्स दिखती हैं, है ना? आपको पता चल जाता है कि पत्थर फेंका गया, भले ही आपने देखा ना हो। ग्रेविटेशनल वेव्स ऐसी ही कॉस्मिक रिपल्स हैं। इन्हें डिटेक्ट करके हम ऐसे इवेंट्स को देख सकते हैं जो अदरवाइज इनविजिबल हैं, जैसे 2 ब्लैक होल्स का टकराना। ये यूनिवर्स को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है। समझ गया। चलिए अब ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन स्टेम चेक पहले। सवाल पूछ रहा है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ये क्लासिक यूपीएससी पैटर्न है। एक सही या गलत स्टेटमेंट से कम नहीं चलेगा, चारों चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1, Gravitational waves are ripples in space-time predicted by general relativity. ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। ये आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी थ्योरी की फंडामेंटल डेफिनेशन है जो उन्होंने 1916 में दी थी। अच्छा, तो पेरिफेरल नॉलेज इसमें ये होगा कि जनरल रिलेटिविटी
और न्यूटन की थ्योरी में फर्क है। एग्जैक्टली न्यूटन ने कहा ग्रेविटी एक फोर्स है, आइंस्टाइन ने कहा ग्रेविटी स्पेस टाइम का कर्वेचर है। यूपीएससी को ये डिफरेंस बहुत पसंद है। ठीक है, स्टेटमेंट 2, दे ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट एंड परमिएट द यूनिवर्स। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये वेव्स लाइट की स्पीड से चलती हैं, जो कॉस्मिक स्पीड लिमिट है। और परमिएट का मतलब है कि ये हर चीज से गुजर जाती हैं। मैटर, प्लैनेट्स, कुछ नहीं रोक सकता। इसका मतलब इनमें इंफॉर्मेशन बिल्कुल प्योर फॉर्म में रहती है। राइट। लाइट की तरह नहीं, जो एब्जॉर्ब या स्कैटर हो सकती है। ग्रेट। स्टेटमेंट 3, LIGO, Virgo and CAGRA form an international network of gravitational wave observatories. हाँ, ये भी सही है। लाइगो यूएसए में है, वर्गो इटली में और कागरा जापान में। ये सब मिलके काम करते हैं। और इंडिया भी तो अपना बना रहा है ना। हाँ, LIGO इंडिया महाराष्ट्र में बन रहा है। पर एक नेटवर्क जरूरी क्यों है? ट्रायंगुलेशन के लिए। जैसे 2 कानों से हम आवाज की डायरेक्शन आसानी से पता लगा लेते हैं, वैसे ही मल्टीपल डिटेक्टर्स से कॉस्मिक इवेंट की एग्जैक्ट लोकेशन आसमान में पिन पॉइंट करना आसान हो जाता है। गॉट इट। अब आते हैं आखिरी स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट 4, ग्रेविटेशनल वेव्स कैन नेवर बी जनरेटेड बाय मर्जिंग ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। इनफैक्ट 2050 में जो पहली ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट हुई थी, वो तो 2 मर्जिंग ब्लैक होल से ही आई थी। एग्जैक्टली मर्जिंग ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स तो ग्रेविटेशनल वेव्स के सबसे पावरफुल सोर्सेज हैं। और ये नेवर वर्ड यहाँ पर एक क्लासिक ट्रैप है। यूपीएससी अक्सर नेवर, ऑलवेज, ऑल जैसे एक्सट्रीम वर्ड यूज करता है। बिल्कुल, इसे हमेशा सस्पिशियस नजर से देखना चाहिए। तो एलिमिनेशन लॉजिक लगाते हैं। स्टेटमेंट 4 गलत है। स्टेटमेंट्स 1, 2 और 3 सही हैं। हाँ, तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हुए? 3। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा आंसर है। सिंपल। बिल्कुल। अब एक मेमोरी हैक याद रखो। आइंस्टाइन्स कॉस्मिक रिपल्स ट्रैवल एट लाइट स्पीड और LVK नेटवर्क लाइगो, विर्गो, कागरा उन्हें डिटेक्ट करता है। सबसे बड़ी रिपल्स मर्जिंग ब्लैक होल से आती हैं, नेवर से नहीं। परफेक्ट। तो इन शॉर्ट, पहले 3 स्टेटमेंट्स फैक्चुअली करेक्ट हैं और चौथा स्टेटमेंट एक मिसकंसेप्शन है। 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलो, अब यूनिवर्स को सुनने से आगे बढ़ते हैं और अपने प्लैनेट को देखते हैं। क्वेश्चन 14, निसार मिशन पर। Okay. With reference to the NISR mission, which of the following statements are correct? 1. It combines L-band and S-band synthetic aperture radar on one satellite platform. 2. Its sweep-SAR configuration enables wide swath, high-resolution imaging of Earth surfaces. 3. Mission data are restricted to participating space agencies and selected defense users. 4. It provides repeated global coverage at regular intervals suitable for monitoring land changes. Options हैं A, 1 and 2 only, B, I, 3 and 4 only, C, I, 2 and 4 only, D, I, 3 and 4 only. ब्रॉड माइक्रो थीम इसका है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। निसार एक बहुत बड़ी चीज है। इसका मतलब है नासा, इसरो, सिंथेटिक एपर्चर रेडार। ये इंडिया और यूएसए की स्पेस एजेंसीज के बीच एक लैंडमार्क कोलैबोरेशन है। इसका काम है अर्थ के सरफेस के एक्सट्रीमली डिटेल्ड 3D मैप्स बनाना। इसकी की टेक्नोलॉजी है सार। रेडार की सुपर पावर ये है कि वो बादलों के आर पार दिन और रात दोनों में देख सकता है। अच्छा, तो क्लियर मौसम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा? एकदम। की एस्पेक्ट्स यहाँ है कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी यानी डुअल बैंड रेडार, इसका पर्पस और इसकी डेटा पॉलिसी। इसका कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल? सोचो, आपको चेक करना है कि हिमालय का कोई ग्लेशियर पिघल रहा है या नहीं, या अमेज़न में जंगल कट रहे हैं, या किसी शहर में जमीन धंस रही है। निसार 1 सेंटीमीटर तक के छोटे चेंजेस भी डिटेक्ट कर लेगा। ये ऐसा है जैसे हम अपने प्लैनेट का हर 12 दिन में एक सुपर हाई रेजोल्यूशन MRI स्कैन कर रहे हैं, उसकी हेल्थ चेक करने के लिए। वाओ। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है विच आर करेक्ट। ठीक है। स्टेटमेंट 1, इट कंबाइंस L बैंड एंड S बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार ऑन वन सैटेलाइट प्लेटफॉर्म। ये बिल्कुल करेक्ट है। ये इसका स्टाफ फीचर है। ये पहला सैटेलाइट है जो 2 अलग-अलग रेडार फ्रीक्वेंसीज L बैंड और S बैंड एक साथ यूज करेगा। और इसमें नासा L बैंड दे रहा है और इसरो S बैंड, राइट? करेक्ट। L बैंड वेजिटेशन के अंदर देखने में अच्छा है और S बैंड एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग के लिए। दोनों मिलकर एक कंप्लीट पिक्चर देते हैं। Statement 2, its sweep-SAR configuration enables wide swath, high resolution imaging. ये भी करेक्ट है। स्वीप सार एक ऐसी टेक्निक है जिससे रेडार एक बहुत बड़े एरिया, जिसे स्वॉथ कहते हैं, को स्कैन कर सकता है और वो भी हाई रेजोल्यूशन मेंटेन करते हुए। मतलब efficiency booster है ये। हाँ, नॉर्मली वाइड व्यू के लिए डिटेल सैक्रिफाइस करना पड़ता है। स्वीप सार इस ट्रेड ऑफ को तोड़ता। ओके, अब आते हैं स्टेटमेंट 3 पर। मिशन डेटा आर रिस्ट्रिक्टेड टू पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज एंड सिलेक्टेड डिफेंस यूजर्स। ये है ट्रैप। सुनने में ऐसा लगता है कि हो सकता है, पर ये बिल्कुल गलत है। निसार मिशन का एक फाउंडिंग प्रिंसिपल है इसकी फ्री और ओपन डेटा पॉलिसी। इसका डेटा सबके लिए, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, पब्लिक, सबके लिए फ्री में अवेलेबल होगा। अच्छा, तो रिस्ट्रिक्टेड यहाँ पर ट्रैप वर्ड है। बिल्कुल। ग्लोबल चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन चाहिए। ओपन डेटा उसको एनकरेज करता है। ग्रेट पॉइंट। आखिरी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 4, इट प्रोवाइड्स रिपीटेड ग्लोबल कवरेज एट रेगुलर इंटरवल्स। ये भी करेक्ट है। निसार पूरी दुनिया को हर 12 दिन में स्कैन करेगा। इसे इसका रीविजिट टाइम कहते हैं।
ये रेगुलरिटी डायनामिक प्रोसेसेस जैसे फसल का बढ़ना या ग्लेशियर्स का पिघलना मॉनिटर करने के लिए क्रूशियल है। और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी बहुत काम आएगा। एग्जैक्टली। तो एलिमिनेशन लॉजिक लगाते हैं। स्टेटमेंट 3 गलत रहा। हाँ, तो ऑप्शंस बी और डी तो गए। बचा ए और सी। हम जानते हैं कि स्टेटमेंट 4 करेक्ट है। ऑप्शन ए में 4 नहीं है। तो ए भी गया, बचा सिर्फ सी, जिसमें 1, 2 और 4 है और हमने कंफर्म किया है कि ये तीनों सही हैं। देखा एलिमिनेशन कितना इफेक्टिव है। अब इसका मेमोरी हैक। निसार है नासा प्लस इसरो का फ्रेंडली आई इन द स्काई। इसके पास ड्यूअल बैंड विजन L+S और वाइड स्वीप है। बेस्ट पार्ट, डेटा सबके लिए फ्री है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं। हर 12 दिन में ग्लोब स्कैन करता है। परफेक्ट। तो इन शॉर्ट ड्यूअल बैंड रेडार, वाइड इमेजिंग और फ्री ग्लोबल डेटा इसके की फीचर्स हैं। रिस्ट्रिक्शन वाला पॉइंट गलत है, इसलिए सी इज द विनर। ठीक है, अब एक ऐसे टॉपिक पर चलते हैं जो सीधा साईफाई मूवी से लगता है। क्वेश्चन 15, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस पर। हाँ, साइंस फिक्शन अब साइंस फैक्ट बन रहा है। न्यूरोलिंक जैसी कंपनीज इस फील्ड में काफी आगे हैं। एक BCI ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रीड करके उन्हें कमांड्स में बदलती है। मतलब सिर्फ सोचकर चीजों को कंट्रोल करना। हाँ, इसके की एस्पेक्ट्स हैं। ये क्या करता है, इसके टाइप्स, इन्वेजिव वर्सेस नॉन इन्वेजिव, ये कैसे काम करता है और इसके एप्लीकेशंस। इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल? सोचो एक पर्सन है जो इंजरी की वजह से गर्दन से नीचे पैरालाइज्ड है, पर उनका दिमाग ठीक काम कर रहा है। एक BCI उनके ब्रेन सिग्नल्स को रीड कर सकता है, जैसे मुझे अपना हाथ लेफ्ट में मूव करना है, और उस थॉट को एक रोबोटिक आर्म के लिए कमांड में बदल सकता है। ये तो उन्हें दुनिया से इंटरेक्ट करने का एक नया तरीका दे देगा। बिल्कुल, बायपासिंग द डैमेज नर्व्स। अब ऑप्शन देखते हैं और ध्यान देना क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम गलत स्टेटमेंट ढूंढ रहे हैं। ओके, स्टेटमेंट 1, a BCI enables direct communication between the brain and an external device। ये तो BCI की डेफिनेशन ही है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पर हमें गलत वाला चाहिए। Statement 2, non-invasive BCIs can acquire brain activity without surgically implanting electrodes। ये भी करेक्ट है। नॉन इन्वेसिव BCIs स्कैल्प पर रखे सेंसर्स यूज करते हैं, जैसे EEG कैप। कोई सर्जरी नहीं। और इन्वेसिव BCI में सर्जरी होती होगी। हाँ, उसमें इलेक्ट्रोड्स सीधे ब्रेन पर इम्प्लांट किए जाते हैं। सिग्नल क्लियर मिलता है, पर रिस्क रहता है। न्यूरोलिंक इन्वेसिव BCI का एग्जाम्पल है। ठीक है। Statement 3, BCIs always require muscular movement to execute commands। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, और क्योंकि ये इनकरेक्ट है, ये हमारा पोटेंशियल आंसर है। BCI का पूरा पॉइंट ही मस्कुलर मूवमेंट को बाईपास करना है। अच्छा, तो ये प्योर थॉट से कंट्रोल की बात है। यस, और यहाँ ऑलवेज वर्ड फिर से एक रेड फ्लैग है। Right. Statement 4, key applications include restoring mobility or speech in patients with neurological disorders। ये भी करेक्ट है। ये BCI का सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिकल एप्लीकेशन है, पैरालाइज्ड लोगों की मदद करना। इसके अलावा ड्रोन्स कंट्रोल करना, मेमोरी एनहांस करना और गेमिंग में भी पोटेंशियल एप्लीकेशंस हैं। तो लॉजिक लगाते हैं। स्टेटमेंट्स 1, 2 और 4 करेक्ट हैं, सिर्फ स्टेटमेंट 3 गलत है। और सवाल ने नॉट करेक्ट पूछा है। तो हमारा आंसर है स्टेटमेंट 3, मतलब ऑप्शन ए। परफेक्ट। इसका मेमोरी हैक, BCI इक्वल्स ब्रेन टू कंप्यूटर। मसल्स की जरूरत नहीं, सब दिमाग का खेल है। इससे मोबिलिटी रिस्टोर करने में हेल्प मिलती है। तो इन शॉर्ट BCI का मेन एम मसल मूवमेंट को बाईपास करना है, इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है और इसलिए सही आंसर है। चलो अब न्यूरोटेक से डिफेंस टेक की तरफ चलते हैं, अपने आसमान को प्रोटेक्ट करने की बात। क्वेश्चन 16, With reference to India's air defense systems in recent developments, which of the following statements are correct? 1. Akashtir is an automated air defense control and reporting system developed by Bharat Electronics Limited. 2. Anant Shastra is an indigenous quick reaction surface-to-air missile system for short-range engagements. 3. Project Kusha aims to develop a long-range surface-to-air missile system with multiple interceptor variants. 4. Akash Weapon System is a long-range anti-satellite weapon designed primarily for exo-atmospheric interception. Options हैं A. IN-3 only, B. IN-4 only, C. I-2 and 3 only, D. All of the above. Broad micro theme है इसका, Defense Technology and Indigenization। ये क्वेश्चन आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस के बारे में है। इंडिया एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड बना रहा है, और ये उसके कुछ की कंपोनेंट्स हैं। एक एयर डिफेंस सिस्टम देश के ऊपर एक प्रोटेक्टिव बबल जैसा होता है। इसका काम है दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और मिसाइल्स को डिटेक्ट, ट्रैक और डिस्ट्रॉय करना। और यहाँ की एस्पेक्ट है सिस्टम का नाम और उसका स्पेसिफिक फंक्शन जानना, जैसे वो मिसाइल है या कंट्रोल सिस्टम, शॉर्ट रेंज है या लॉन्ग रेंज। एकदम सही। एग्जाम्पल से समझाइए। सोचो, दुश्मन ने मिसाइल लॉन्च की। पहले रेडार्स का नेटवर्क, जो आंखें हैं, उससे डिटेक्ट करेगा। ये इन्फॉर्मेशन कमांड सेंटर, जो ब्रेन है, तक जाएगी, यानी आकाशतीर तक। ब्रेन थ्रेट को एनालाइज करेगा और मिसाइल लॉन्चर, जो मुट्ठी है जैसे आकाश, को फायर करने का ऑर्डर देगा। ये सब कुछ सेकंड्स में हो जाता है। अंडरस्टूड। अब ऑप्शंस। सवाल है which are correct? Defense Control and Reporting System developed by Bharat Electronics Limited.
ये करेक्ट है। आकाश तीर सिस्टम का ब्रेन है, ये सारे रेडार्स और लॉन्चर्स को एक नेटवर्क में जोड़ता है। इसे BEL ने बनाया है। ये एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। हाँ, और इसका ऑटोमेशन बहुत जरूरी है क्योंकि मॉडर्न थ्रेट्स बहुत फास्ट होते हैं। Statement 2. Anant Shastra is an indigenous quick reaction surface-to-air missile system for short-range engagements. ये भी करेक्ट है। ये इंडियन आर्मी की QRASM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल रिक्वायरमेंट के लिए एक कंटेंडर है। QRSMs मोबाइल सिस्टम्स होते हैं जो मूविंग आर्मी कॉलम्स को प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, उन्हें बहुत कम टाइम में रुक कर फायर करना होता है। Okay. Statement 3. Project Kusha aims to develop a long-range surface-to-air missile system. ये भी करेक्ट है। प्रोजेक्ट कुशा DRDO का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसे इंडिया का अपना S-400 कहा जा रहा है। ये फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइल्स जैसे थ्रेट्स को सैकड़ों किलोमीटर दूर से मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये इंडिया के डिफेंस के लिए बहुत क्रिटिकल होगा। बिल्कुल, इंडिजिनस होने से दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी कम होती है। अब आते हैं स्टेटमेंट 4 पे। आकाश वेपन सिस्टम इज अ लॉन्ग रेंज एंटी सैटेलाइट वेपन। ये इनकरेक्ट है। इसमें दो चीजें मिक्स कर दी हैं। आकाश मिसाइल एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, लॉन्ग रेंज नहीं। और ये एंटी सैटेलाइट एसैट वेपन भी नहीं है। राइट, इंडिया के पास एसैट कैपेबिलिटी है जिसे मिशन शक्ति में डेमोन्स्ट्रेट किया गया था, पर उसमें आकाश यूज नहीं हुई थी। आकाश एटमॉस्फेयर के अंदर एंडो एटमॉस्फेरिक काम करती है, बाहर नहीं। तो एलिमिनेशन लॉजिक के हिसाब से स्टेटमेंट 4 गलत है। हाँ, तो B और D ऑप्शंस गए। बचा A और C। हम जानते हैं कि 1 और 3 तो करेक्ट हैं और 2 भी करेक्ट है। इसका मतलब करेक्ट कॉम्बिनेशन है 1, 2 और 3, ऑप्शन C। ग्रेट ब्रेकडाउन। आकाश मिसाइल की कैपेबिलिटी में ही कंफ्यूजन पॉइंट था। बिल्कुल। इसका मेमोरी हैक, आकाश तीर का तीर सिस्टम को एम यानी कंट्रोल करता है। कुशा लॉन्ग रेंज के लिए है, कुशलता से। पर आकाश मिसाइल खुद शॉर्ट रेंज है और एटमॉस्फेयर में रहती है, सैटेलाइट नहीं गिरती। तो इन शॉर्ट पहले 3 स्टेटमेंट सही हैं, चौथा आकाश मिसाइल को मिसरिप्रेजेंट करता है, इसलिए C सही है। चलिए अब अपने एटमॉस्फेयर को डिफेंड करने से आगे बढ़ते हैं, उसके पार के खतरों की तरफ। क्वेश्चन 17 स्पेस हैजर्ड्स पर। And hazards, consider the following statements. 1. Solar flares are giant explosions on the sun that send energy, light, and high-speed particles into space. 2. X-class flares are the most powerful category of solar flares. 3. Space debris refers to non-functional, human-made objects in orbit around Earth. 4. Kessler syndrome describes a stable orbital regime where collisions between debris steadily decrease. सवाल है, which of the statements given above are not correct? A. 4 only. B. 3 and 4 only. C. 1 and 2 only. D. None of the above. Broad micro theme इसका है Space Situational Awareness. स्पेस खाली दिखता है पर वहाँ चैलेंजेस बहुत हैं। जैसे जैसे हम सैटेलाइट्स पर डिपेंड हो रहे हैं, हम स्पेस हैजर्ड्स के लिए ज़्यादा वल्नरेबल हो रहे हैं। ये हैजर्ड्स नेचुरल हो सकते हैं, जैसे सोलार फ्लेयर्स, या मैन मेड, जैसे स्पेस डिब्री। इन्हें समझना ही स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस है। इसका कोई एग्जाम्पल? सोचो, एक बहुत बड़ा सोलर फ्लेयर अर्थ से टकराए, पावर ग्रिड्स फेल हो सकते हैं, GPS काम करना बंद कर सकता है। ये तो स्पेस वेदर इवेंट हुआ। हाँ, और दूसरी तरफ सोचो 2 पुराने सैटेलाइट्स आपस में टकरा जाएं, उनके हजारों टुकड़े हो जाएंगे जो गोली की रफ्तार से घूमेंगे, बाकी सैटेलाइट्स के लिए एक माइनफील्ड बन जाएगी। ये मैनमेड थ्रेट हुआ। अब ऑप्शंस देखते हैं। याद रखना, नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, स्टेटमेंट 1, सोलर फ्लेयर्स आर जायंट एक्सप्लोजन्स ऑन द सन। ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इससे रिलेटेड एक कोरोनल मास इजेक्शन CME भी होता है। करेक्ट, वो और भी बड़ा इरप्शन होता है और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स का मेजर कॉज है। स्टेटमेंट 2, X-class flares are the most powerful category of solar flares. ये भी करेक्ट है। सोलर फ्लेयर्स को A, B, C, M और X में क्लासिफाई किया जाता है। A सबसे कमजोर, X सबसे स्ट्रॉन्ग। एक्स क्लास फ्लेयर एक मेजर इवेंट होता है। स्टेटमेंट 3, स्पेस डेब्री रिफर्स टू नॉन फंक्शनल ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्बिट। ये भी करेक्ट है। स्पेस डेब्री या स्पेस जंक में सब कुछ आता है, मरे हुए सैटेलाइट्स, रॉकेट के हिस्से, यहाँ तक कि नट्स, बोल्ट्स और पेंट के टुकड़े भी। और ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं। हाँ, 28,000 किलोमीटर की स्पीड पर एक छोटा पेंट का टुकड़ा भी कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। ओके, तो अब आते हैं स्टेटमेंट 4 पर। Kessler syndrome describes a stable orbital regime where collisions between debris steadily decrease. और ये इनकरेक्ट है। ये सच का बिल्कुल उल्टा है। केसलर सिंड्रोम एक नाइटमेयर सिनेरियो है। ये ऐसी सिचुएशन है जहां लो अर्थ ऑर्बिट में इतना कचरा हो जाता है कि कोलिजन से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, मतलब हर टक्कर से और डेब्री बनता है। जिससे और टक्कर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो डिब्रीज घटने की जगह एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाता है। ये तो कुछ ऑर्बिट्स को बिल्कुल अनयूजेबल बना देगा। एग्जैक्टली। ये तो बहुत सीरियस कंसर्न है। तो हमें हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल गया, नंबर 4। हाँ, 1, 2 और 3 करेक्ट हैं। सवाल ने नॉट करेक्ट पूछा है। तो आंसर है स्टेटमेंट 4 ओनली, ऑप्शन A। बिल्कुल। इसका मेमोरी हैक, केसलर सिंड्रोम इज इक्वल टू कैस्केडिंग कोलिजन्स, चेन रिएक्शन जिसमें स्पेस जंक बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। ये एक स्पेस ट्रैफिक जैम का नाइटमेयर है। इन शॉर्ट, केसलर सिंड्रोम में डेब्री बढ़ता है, घटता नहीं। यही की पॉइंट है।
चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्लासिक टॉपिक, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स। क्वेश्चन 18. With reference to cruise and ballistic missiles, which of the following statements are correct? 1. A cruise missile is a self-propelled guided vehicle powered by a jet engine that flies within the atmosphere. 2. A ballistic missile is launched on a suborbital trajectory and its flight is unpowered during mid-course, following an arching path under gravity. 3. Cruise missiles are generally harder to detect in their early phase but easier to intercept once detected, while ballistic missiles are easier to detect at launch but harder to intercept in their terminal phase. 4. Ballistic missiles are always subsonic, making interception easier than for cruise missiles. Select the correct answer using the code given below. A. I and 2 only. B. 2, 3 and 4 only. C. 1, 2 and 3 only. D. All of the above. ब्रॉड माइक्रो थीम है इसका। Missile technology. ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। चलो इसको आसान बनाते हैं। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक दोनों का काम वॉरहेड को टारगेट तक पहुंचाना है, पर उनके तरीके बिल्कुल अलग हैं। ये कार और तोप के गोले जैसा फर्क है। अच्छा, कैसे? क्रूज मिसाइल कार जैसी है, वो पूरा रास्ता अपने इंजन से चलती है। जमीन के पास उड़ती है। हाँ, और रुकावटों से बच सकती है। ब्रह्मोस इसका एग्जाम्पल है। बिल्कुल। बैलिस्टिक मिसाइल तोप के गोले जैसी है। उसे बस एक बार फायर किया जाता है, वो बहुत ऊपर स्पेस तक जाती है और फिर ग्रेविटी के अंडर टारगेट पर गिरती है। अग्नि सीरीज इसका एग्जाम्पल है। बहुत अच्छा एनालॉजी है। हम्म अब ऑप्शंस चेक करते हैं। Which are correct? पूछा है। ठीक है। स्टेटमेंट 1, A cruise missile is a self-propelled guided vehicle powered by a jet engine that flies within the atmosphere. ये परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है, करेक्ट। ये छोटे पायलटलेस एयरप्लेन जैसे होते हैं। उन्हें अपने जेट इंजन के लिए हवा चाहिए, इसलिए वो एटमॉस्फेयर में ही उड़ते हैं। इन्हें टेरेन हगिंग मिसाइल्स भी कहते हैं ना? हाँ, इसलिए रेडार इन्हें आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाता। Statement 2. A ballistic missile is launched on a suborbital trajectory and its flight is unpowered during mid-course. ये भी परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है, करेक्ट। इनके रॉकेट इंजन कुछ मिनट के लिए चलते हैं, बूस्ट फेज। उसके बाद ये बस ग्रेविटी के असर में एक प्रिडिक्टेबल आर्क में ट्रैवल करती है। Unpowered. राइट। Statement 3. Cruise missiles are generally harder to detect, while ballistic missiles are easier to detect at launch. ये डिटेक्शन और इंटरसेप्शन के बारे में स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्रूज मिसाइल्स नीचे उड़ती हैं, इसलिए शुरू में डिटेक्ट करना मुश्किल, पर एक बार डिटेक्ट हो जाएं तो वो थोड़ी धीरे होती हैं, तो उन्हें मार गिराना आसान है। और बैलिस्टिक मिसाइल्स का लॉन्च बहुत बड़ा और आग से भरा होता है, जो सैटेलाइट्स आसानी से देख लेते हैं। पर जब वो टर्मिनल फेज में नीचे आती हैं तो उनकी स्पीड हाइपरसोनिक साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा होती है, जिससे उन्हें इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। अब स्टेटमेंट 4. Ballistic missiles are always subsonic, making interception easier than for cruise missiles. ये पूरी तरह से गलत है। उनका सबसे बड़ा एडवांटेज ही उनकी स्पीड है। वो हाइपरसोनिक होती हैं, सबसोनिक नहीं। यहाँ ऑलवेज फिर से ट्रैप है और सबसोनिक तो बिल्कुल उल्टा है। एकदम। कुछ क्रूज मिसाइल सबसोनिक होती हैं, पर बैलिस्टिक अपने अटैक फेज में कभी सबसोनिक नहीं होती। तो लॉजिक के हिसाब से स्टेटमेंट 4 गलत है, इसलिए ऑप्शंस बी और डी आउट। हाँ। और हम जानते हैं कि स्टेटमेंट्स 1, 2 और 3 करेक्ट हैं। हाँ। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। मेमोरी हैक। बैलिस्टिक इक्वल्स बॉल जैसी ऊपर जाती है और नीचे आते वक्त बहुत फास्ट हाइपरसोनिक होती है। क्रूज इक्वल्स कार में क्रूजिंग जैसी, नीचे रहती है, पूरा रास्ता इंजन चलता है और धीरे होती है। कार वर्सेस कैनन बॉल एनालॉजी बेस्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कटिंग एज फिजिक्स से। क्वेश्चन 19, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पर। ये स्टेटमेंट आई और स्टेटमेंट 2 टाइप का है। Statement I. QKD uses quantum states of photons to distribute encryption keys with the unique property that any attempt to eavesdrop is immediately detectable. Statement 2. The National Quantum Mission of India seeks among its objectives to develop secure quantum communication networks for sectors like defense, banking, and strategic infrastructure. Options हैं A, B, C, D. Classic assertion reasoning format. ब्रॉड माइक्रो थीम, क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड नेशनल पॉलिसी। क्वांटम आईटी के बाद अगला बड़ा रेवोल्यूशन है। देखो, आज हमारा सारा सीक्रेट कम्युनिकेशन ऐसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स पर बेस्ड है जो नॉर्मल कंप्यूटर्स के लिए सॉल्व करना मुश्किल है, पर आने वाले क्वांटम कंप्यूटर्स उन्हें चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, हमारी सारी इंक्रिप्शन तोड़ देंगे। तो हमें डेटा सिक्योर करने का नया तरीका चाहिए। वही है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन या QKD। ये अनहैकेबल कम्युनिकेशन के लिए क्वांटम फिजिक्स के लॉज यूज करता है। इसे आसान भाषा में समझाइए। सोचो आप और आपका दोस्त एक सीक्रेट की शेयर कर रहे हो, कुछ स्पेशल नाजुक क्वांटम सिक्के भेजकर। क्वांटम फिजिक्स का नियम कहता है कि अगर कोई जासूस उस बॉक्स को खोलकर सिक्का देखने की कोशिश करेगा तो सिक्का तुरंत बदल जाएगा या टूट जाएगा। तो जब आपके दोस्त को बॉक्स मिलेगा, उन्हें तुरंत पता चल जाएगा कि किसी ने की देखने की कोशिश की है। अच्छा, तो इससे की शेयरिंग बिल्कुल सिक्योर हो जाती है। हाँ। चलिए अब स्टेटमेंट्स चेक करते हैं। स्टेटमेंट आई, QKD uses quantum states with the unique property that any attempt to eavesdrop is immediately detectable. ये QKD की बिल्कुल सही डेफिनेशन है, करेक्ट। इसकी सिक्योरिटी मैथ पर नहीं, फिजिक्स के लॉ ऑब्जर्वर इफेक्ट पर डिपेंड करती है। ऑब्जर्व करने से सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। स्टेटमेंट 2. The National Quantum Mission of India seeks. ये भी करेक्ट है। नेशनल क्वांटम मिशन का एक मेन गोल ही है
इंडिजिनस क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप करना और क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए सिक्योर नेटवर्क्स बनाना। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब आती है असली बात। क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करता है? चलो साथ में पढ़ते हैं। QKD इस तरह से काम करता है क्योंकि इंडिया का एक नेशनल क्वांटम मिशन है। नहीं, ये तो सेंस नहीं बना रहा। राइट। स्टेटमेंट 1 एक यूनिवर्सल साइंटिफिक प्रिंसिपल है। स्टेटमेंट 2 एक देश की नेशनल पॉलिसी है। नेशनल क्वांटम मिशन उस टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, पर वो ये एक्सप्लेन नहीं करता कि टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। समझ गया। दोनों सेम टॉपिक पर हैं, इसलिए लिंक करना टेम्पटिंग है, पर एक व्हाट इज इट स्टेटमेंट है और दूसरा व्हाट आर वी डूइंग विद इट। You've nailed it। तो दोनों करेक्ट है, पर आई का एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है, मेमोरी हैक। QKD एक टूल, हथौड़ा है। NQM उस टूल को यूज करने वाला प्रोजेक्ट, घर बनाना है। प्रोजेक्ट का गोल ये नहीं बताता कि हथौड़ा कैसे काम करता है। चलिए, अब क्वांटम से वापस स्पेस टेक पर। इंडिया का अपना GPS। क्वेश्चन 20। स्टेटमेंट आई, नाविक सैटेलाइट्स ऑपरेट इन पोलर ऑर्बिट्स टू प्रोवाइड कवरेज ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। Statement 2. Polar orbits are mainly used for satellites requiring global coverage, such as many Earth observation missions. फिर से assertion reasoning format. Broad microtheme, satellite orbits and navigation systems. ऑर्बिट स्पेस के हाईवेज जैसे होते हैं। सही हाईवे चुनना बहुत जरूरी है। नेविक, जिसे IRNSS भी कहते हैं, इंडिया का रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। ये इंडिया और उसके आसपास के 1500 किलोमीटर एरिया में सर्विस देता है। यहाँ की एस्पेक्ट ये समझना है कि एक सैटेलाइट कौन सा ऑर्बिट यूज करता है और क्यों। आपने पहले टीवी चैनल और स्पाई एजेंसी का एग्जाम्पल दिया था। हाँ, टीवी चैनल को एक ऐसा सैटेलाइट चाहिए जो आसमान में एक ही जगह पर फिक्स्ड दिखे। वो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। स्पाई एजेंसी को पूरी दुनिया की तस्वीरें लेनी है। उसे एक ऐसा सैटेलाइट चाहिए जो नॉर्थ और साउथ पोल्स के ऊपर से उड़े, ताकि अर्थ नीचे घूमती रहे और पूरा प्लैनेट स्कैन हो जाए। वो है पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। तो नाविक जो रीजनल है उससे तो फिक्स्ड रहना होगा। एग्जैक्टली। तो स्टेटमेंट आई देखते हैं। नाविक सैटेलाइट्स ऑपरेट इन पोलर ऑर्बिट्स। ये इनकरेक्ट है। रीजनल सिस्टम के लिए सैटेलाइट्स को इंडिया के ऊपर ही रहना होगा। नाविक जियो स्टेशनरी, GEO और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स यूज करता है। ये ऑर्बिट सैटेलाइट्स को इंडियन ओशन रीजन के ऊपर 24/7 रखते हैं। पोलर ऑर्बिट इसके लिए गलत चॉइस है। अब स्टेटमेंट 2, पोलर ऑर्बिट्स आर मेनली यूज्ड फॉर सैटेलाइट्स रिक्वायरिंग ग्लोबल कवरेज। ये बिल्कुल करेक्ट है। जैसा हमने डिस्कस किया, पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट आखिरकार पूरे प्लैनेट को कवर कर लेता है। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन और स्पाई सैटेलाइट्स के लिए परफेक्ट है। इंडिया के रिसोर्स सैट या कार्टोसैट भी यही यूज करते हैं ना? हाँ, वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट यूज करते हैं, जो एक स्पेशल टाइप का पोलर ऑर्बिट है। तो इसका कंक्लूजन तो सिंपल है। हाँ, स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है। इस केस में हमें रिलेशनशिप चेक करने की जरूरत ही नहीं। सीधा सीधा ऑप्शन डी आंसर है। स्टेटमेंट आई इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। मिशन डिफाइंस द ऑर्बिट, बिल्कुल क्लियर हो गया। मेमोरी हैक। नाविक रीजनल है, इसलिए वो इंडिया के ऊपर फिक्स्ड रहता है। जियो में पोलर ऑर्बिट ग्लोबल व्यू के लिए है, जो पूरे प्लैनेट पर पेट्रोल करते हैं। ओके, अब कुछ सीरियस टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन 21, इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। स्टेटमेंट आई, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स आर सेंट्रल टू द सेकंड स्टेज ऑफ इंडियाज 3-stage न्यूक्लियर प्रोग्राम। स्टेटमेंट 2, they breed more fissile material than they consume by converting fertile uranium-238 into fissile plutonium-239 and use liquid sodium as a coolant and do not use a moderator. Let's assume कि टेस्ट में स्टेटमेंट 2 का एक गलत वर्जन था, जैसे they breed fissile uranium-233 from thorium directly using light water as coolant and moderator. ठीक है, ये डॉक्टर होमी जे भाभा का विजन था इंडिया की लॉन्ग टर्म एनर्जी स्ट्रैटेजी। देखो, इंडिया के पास यूरेनियम कम है पर थोरियम बहुत ज्यादा है। 3-stage प्रोग्राम एक जीनियस प्लान है जिससे हम अपने कम यूरेनियम को यूज करके आखिर में अपने थोरियम की एनर्जी को अनलॉक कर सकें। ये कुकिंग की तरह है ना? स्टेज 1 में गैस यूरेनियम से खाना बनाते हैं और बाई प्रोडक्ट में कोयला प्लूटोनियम मिलता है। हाँ, स्टेज 2 में उस कोयले को एक स्पेशल स्टोव फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूज करते हैं और ये स्टोव जादू से और कोयला ब्रीड करता है। स्टेज 3 में उस ब्रीड किए हुए कोयले से हम अपना थोरियम का भंडार जलाते हैं, जिससे सदियों तक एनर्जी मिलेगी। ग्रेट। अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। गलत स्टेटमेंट सेकंड वाले वर्जन के साथ। ठीक है। स्टेटमेंट आई, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स आर सेंट्रल टू द सेकंड स्टेज ऑफ इंडियाज 3-stage न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये बिल्कुल करेक्ट है। स्टेज 2 का मतलब ही फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR है। ये स्टेज 1 और 3 के बीच का क्रिटिकल लिंक है। कल्पक्कम में जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, वो इसका की फैसिलिटी है। करेक्ट। अब आते हैं उस गलत ट्रैप वर्जन ऑफ स्टेटमेंट 2 पर। They breed fissile uranium-233 from thorium directly using light water as coolant. ये स्टेटमेंट गलतियों का कॉकटेल है। इनकरेक्ट। पहली गलती, फ्यूल ब्रीड। स्टेज 2 FBRs प्लूटोनियम-239 ब्रीड करते हैं यूरेनियम-238 से। यूरेनियम-233 थोरियम से स्टेज 3 में बनता है। दूसरी गलती, कूलेंट। FBRs बहुत हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं। वो लिक्विड सोडियम यूज करते हैं, लाइट वाटर नहीं। तीसरा गलती, मॉडरेटर। इन्हें फास्ट ब्रीडर कहते इसीलिए हैं क्योंकि ये फास्ट न्यूट्रॉन्स यूज करते हैं। इसमें मॉडरेटर नहीं होता। मॉडरेटर न्यूट्रॉन्स को स्लो करता है। वाओ, इसमें तो सब कुछ ही गलत है।
फ्यूल, कूलेंट, मॉडरेटर। इसीलिए डीप क्लैरिटी जरूरी है। तो स्टेटमेंट आई करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी सही है। मेमोरी हैक स्टेज 2 FBR के लिए याद रखो। ये फास्ट है इसलिए नो मॉडरेटर, ये हॉट है इसलिए लिक्विड सोडियम कूलेंट है, ये प्लूटोनियम ब्रीड करता है यूरेनियम से, थोरियम से U233 स्टेज 3 का काम है। ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी से अब एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस की तरफ। क्वेश्चन 22, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR पर। स्टेटमेंट आए, द मिसयूज एंड ओवरयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन ह्यूमंस, लाइवस्टॉक एंड एग्रीकल्चर आर द प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR. Statement 2. Unapproved or irrational fixed-dose combinations (FDCs) of antibiotics can exacerbate the AMR crisis by promoting incorrect dosages and encouraging the use of broad-spectrum antibiotics when not needed. Assertion reasoning format. Broad micro-theme. Public health and drug regulation. AMR को साइलेंट पेंडेमिक भी कहते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है। AMR का मतलब है जब बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा टाइम के साथ बदल जाते हैं और दवाइयों पर रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। इन्फेक्शंस का इलाज मुश्किल हो जाता है। मतलब हमारी सुपर ड्रग्स बेकार हो रही हैं? हाँ, इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो। आपको गले में इन्फेक्शन हुआ, एंटीबायोटिक ली और ठीक हो गए। अब AMR वाले फ्यूचर में सोचो, वही इन्फेक्शन पर बैक्टीरिया सब एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है, इन्फेक्शन निमोनिया बन सकता है, आप ICU में पहुंच सकते हो। छोटे इन्फेक्शंस लाइफ थ्रेटनिंग बन सकते हैं। अब स्टेटमेंट्स चेक करते हैं। स्टेटमेंट आई, द मिसयूज एंड ओवरयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स आर द प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ AMR। ये 100% करेक्ट है। ये AMR का ग्लोबली एक्सेप्टेड कारण है। जब हम एंटीबायोटिक्स बेवजह लेते हैं या कोर्स पूरा नहीं करते तो हम बैक्टीरिया को इवॉल्व होने का मौका देते हैं। ये नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन है। बिल्कुल। Statement I. Unapproved or irrational fixed-dose combinations (FDCs) can exacerbate the AMR crisis. ये भी करेक्ट है। FDC एक ऐसी गोली है जिसमें 2 या ज्यादा दवाइयां होती हैं। कुछ FDCs अच्छे होते हैं, पर एक इरैशनल FDC में 2 पावरफुल एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं जब जरूरत सिर्फ एक की हो। ये मिसयूज का एक फॉर्म हुआ। हाँ, ये रेजिस्टेंस को फास्ट ट्रैक करता है। इंडिया में इरैशनल FDCs एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करता है? देखो, स्टेटमेंट 1 कहता है AMR मिसयूज और ओवरयूज से होता है। स्टेटमेंट 2 मिसयूज का एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देता है, इरैशनल FDCs का यूज। अच्छा, तो ये एक अलग इशू नहीं बल्कि मेन प्रॉब्लम का ही एक हिस्सा है। इरैशनल FDC मिसयूज का पोस्टर चाइल्ड है। एग्जैक्टली। तो स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को बिल्कुल एक्सप्लेन करता है। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। मेमोरी हैक, AMR प्रॉब्लम है, इरैशनल FDCs उस प्रॉब्लम का एक बड़ा रीजन है। तो रीजन प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता है। चलिए अब जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी की दुनिया में क्वेश्चन 23 मैच द पेयर्स टाइप का है। कंसर्निंग जंपिंग जीन्स एंड स्टेम सेल्स कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। 1. Transposable elements, DNA sequences that can change their position within a genome. 2. Line 1 element, a specific type of jumping gene that constitutes a significant part of the human genome. 3. Pluripotent stem cells can differentiate into all cell types of an adult organism. 4. Adult stem cells reside in specific tissues and are involved in tissue repair and regeneration. How many of the pairs given above are correctly matched? Broad micro theme, genetics and cell biology. ये क्वेश्चन मॉडर्न बायोलॉजी के 4 फंडामेंटल डेफिनेशंस टेस्ट कर रहा है। चलो एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? ठीक है। Pair 1, transposable elements, DNA sequences that can change their position within a genome. ये करेक्ट डेफिनेशन है। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स या जंपिंग जीन्स लिटरली DNA में एक जगह से कट होकर दूसरी जगह पेस्ट हो सकते हैं। Pair 2, line 1 element, a specific type of jumping gene that constitutes a significant part of the human genome. ये भी करेक्टली मैच्ड है। लाइन 1 हमारे DNA में सबसे कॉमन जंपिंग जीन है और ये सच है कि वो हमारे जीनोम का लगभग 17% हिस्सा बनाते हैं। Pair 3, pluripotent stem cells can differentiate into all cell types of an adult organism. ये भी परफेक्ट डेफिनेशन है। प्लूरी का मतलब मैनी और पोटेंट का मतलब पावर। तो इनमें बहुत सारे सेल टाइप्स बनने की पावर होती है। ये मास्टर सेल्स हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स प्लूरीपोटेंट होते हैं। और Pair 4, adult stem cells reside in specific tissues and are involved in tissue repair and regeneration. ये भी करेक्टली मैच्ड है। एडल्ट स्टेम सेल्स स्पेसिफिक टिश्यूज में पाए जाते हैं। ये मल्टीपोटेंट होते हैं, मतलब वो सिर्फ उसी टिश्यू के सेल्स बना सकते हैं जहां वो रहते हैं। जैसे बोन मैरो का स्टेम सेल सिर्फ ब्लड सेल्स बना सकता है, ब्रेन सेल्स नहीं। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब चारों पेयर्स ही सही मैच्ड हैं। हाँ, पेयर 1 करेक्ट, पेयर 2 करेक्ट, पेयर 3 करेक्ट, पेयर 4 करेक्ट। तो आंसर है डी, ऑल 4 पेयर्स। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज चेक था। मेमोरी हैक, ट्रांसपोजेबल इक्वल्स मोबाइल DNA, प्लूरीपोटेंट इक्वल्स प्लूरल मेनी चॉइसेस, कुछ भी बन सकता है। अडल्ट इक्वल स्पेशलाइज्ड लिमिटेड चॉइसेस, टिश्यू स्पेसिफिक। चलो बायोलॉजी से डिजिटल दुनिया में क्वेश्चन 24 एक और मैच द पेयर्स।
Regarding selected IT and communication technologies, consider the following pairs. 1. Bluetooth mesh networking enables many-to-many device communication for large-scale automation. 2. Project Kuiper, an Amazon-led initiative to launch a constellation of satellites for global broadband internet. 3. FASTag, an RFID-based electronic toll collection system. 4. Digital Twin, a virtual replica of a physical object or system that is updated with real-time sensor data. सवाल वही, how many pairs are correctly matched? चलो इनको भी एक एक करके देखते हैं। पेयर 1 ब्लूटूथ मैश नेटवर्किंग इनेबल्स मेनी टू मेनी डिवाइस कम्युनिकेशन, ये करेक्ट है। नॉर्मल ब्लूटूथ 1 to 1 होता है, जैसे फ़ोन और हेडफोन्स। मैश में बहुत सारे डिवाइसेस आपस में बात कर सकते हैं। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के लिए बहुत जरूरी है, स्मार्ट बिल्डिंग्स के लिए फॉर एग्जांपल। हाँ, Pair 3, Project Cooper, an Amazon-led initiative to launch a constellation of satellites for global broadband internet. ये भी करेक्ट है। प्रोजेक्ट कूपर अमेजॉन का स्पेसएक्स के स्टारलिंक का जवाब है। ये हजारों सैटेलाइट्स का नेटवर्क होगा हाई स्पीड इंटरनेट के लिए। Pair 3, FASTag, an RFID-based electronic toll collection system. ये तो हम सब यूज करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। फास्टैग में एक RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप होती है जिसे टोल प्लाजा पर रीडर स्कैन करता है। Pair 4, Digital Twin, a virtual replica of a physical object, updated with real-time sensor data. ये भी परफेक्ट डेफिनेशन है, करेक्ट। डिजिटल ट्विन सिर्फ एक 3D मॉडल नहीं है, ये एक लिविंग डायनामिक मॉडल है जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के सेंसर्स से डेटा लेकर कॉन्स्टेंटली अपडेट होता रहता है। जैसे एक जेट इंजन का डिजिटल ट्विन, मैन्युफैक्चरर उसे रियल टाइम में मॉनिटर करके मेंटेनेंस प्रिडिक्ट कर सकता है। बहुत पावरफुल टूल है ये। तो फिर से हमारे चारों पेयर्स करेक्टली मैच्ड है। Pair 1, 2, 3, 4, सब करेक्ट, तो आंसर फिर से all 4 pairs. बिल्कुल। मेमोरी हैक, सोचो एक स्मार्ट फैक्ट्री डिजिटल ट्विन जहां मशीन्स ब्लूटूथ मैश से बात करती हैं, उसकी इन्वेंट्री RFID फास्टैग जैसा से ट्रैक होती है और ग्लोबल ऑपरेशंस सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट कुइपर जैसा से जुड़े हैं। और अब इस मैराथन सेशन का आखिरी सवाल, क्वेश्चन 25, इसरो की रीसेंट जीत पर। As regards major recent Indian space missions, consider the following pairs. 1. NISAR, a joint NASA-ISRO mission for global Earth imaging using L and S-band SAR. 2. Gaganyaan, India's first human spaceflight mission to demonstrate crewed flight to low Earth orbit. 3. Chandrayaan 3, achieved a historic soft landing near the lunar south pole. 4. Aditya L1, an observatory-class mission to study the sun from the Lagrange point 1, L1. फिर से, how many pairs are correctly matched? ये इसरो के इनक्रेडिबल सक्सेसेस का सेलिब्रेशन है। चलो इन लैंडमार्क मिशंस की नॉलेज चेक करते हैं। Pair 1, NISAR, a joint NASA-ISRO mission for global Earth imaging using L and S-band SAR. करेक्ट, हमने इस पर क्वेश्चन 14 में डिटेल में बात की थी। ये परफेक्ट समरी है। Pair 2, Gaganyaan, India's first human spaceflight mission. करेक्ट, गगनयान इंडिया का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिससे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स यानी व्योमनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा, इंडियन रॉकेट से, इंडियन जमीन से। Pair 3, Chandrayaan 3, achieved a historic soft landing near the lunar south pole. बिल्कुल करेक्ट। 2023 में ये देश के लिए गर्व का पल था। इंडिया मून पर सॉफ्ट लैंड करने वाला चौथा देश बना और साउथ पोल के पास लैंड करने वाला पहला। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का प्रज्ञान। सही। और आखिरी, Pair 4, Aditya L1, an observatory class mission to study the sun from the Lagrange point 1, L1. करेक्ट, आदित्य L1 इंडिया की पहली डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेटरी है। ये अर्थ या सन को ऑर्बिट नहीं कर रहा, बल्कि एक स्पेशल पॉइंट लेग्रांज पॉइंट 1 पर स्थित है, जहां से सूरज पर 24/7 नजर रखी जा सकती है, बिना किसी ग्रहण के। हाँ। तो लगता है इस बार भी सभी पेयर्स करेक्ट हैं। हाँ, तीसरी बार चारों पेयर्स सही हैं। निसार, गगनयान, चंद्रयान 3, आदित्य L1 सब करेक्ट है। तो आंसर है डी, ऑल 4 पेयर्स। इनक्रेडिबल, इसरो तो कमाल कर रहा है। मेमोरी हैक, निसार अर्थ को देखता है, गगनयान ह्यूमंस को स्पेस ले जाता है, चंद्रयान मून पर लैंड करता है, आदित्य सन को देखता है। अर्थ, ह्यूमंस, मून, सन सब कवर हो गए। और इसी के साथ हमारा मैराथन डीप डाइव खत्म होता है। क्या सेशन था। हमने ग्रेविटेशनल वेव्स की कॉस्मिक रिपल से लेकर मून के साउथ पोल तक का सफर किया। हमने BCI से इंसानी दिमाग में झांका, प्रोजेक्ट कुशा से अपने आसमान को प्रोटेक्ट किया और क्वांटम कीज से अपने डेटा को सिक्योर किया। हमने सीखा कि नाविक रीजनल है, पोलर नहीं, कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स गर्म तेज होते हैं और लिक्विड सोडियम यूज करते हैं, और केस्लर सिंड्रोम स्पेस जंग का एक चेन रिएक्शन वाला नाइटमेयर है। हर सवाल साइंस और टेक्नोलॉजी की एक फैसिनेटिंग फील्ड का दरवाजा था। ये सच में दिखाता है कि सब कुछ कितना इंटरकनेक्टेड है और दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का फ्यूचर शेप कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये हमें एक आखिरी सोचने वाले विचार के साथ छोड़ जाता है। हमने ऐसी टेक्नोलॉजीज की बात की जो दिमाग पढ़ सकती हैं, जीन्स एडिट कर सकती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकती हैं। ये टूल्स इंसानियत को अब तक की सबसे ज्यादा ताकत देते हैं। तो हम सब के लिए एक अहम सवाल ये है,
हम ये कैसे इंश्योर करें कि इस ताकत का इस्तेमाल समझदारी से हो? हम इनोवेशन की रेस और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस कैसे बनाएं ताकि ये टूल्स हमें जोड़े और हमारी बड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व करें, ना कि नई प्रॉब्लम्स पैदा करें? इस पर सोचना जरूर। अगली बार तक कीप डाइविंग डीप।